Hello everyone, Namaste. This is Fly High with Sakshi and today I have come up to give my introduction video. What is this YouTube channel is all going to be about. I'll come up with different kind of videos, but all I need is your support, for which all you need to do is like, comment, share and subscribe. Do not forget to mention your misconception or whatever queries you have related to aviation industry. I will try out my level best to solve and give replies to all of you by making videos, because I believe in the concept which my father has told me long back during my childhood days. If you are having any kind of doubt, अगर आपको क्लास में किसी भी कॉन्सेप्ट में किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, डू नॉट हेजिटेट. क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आप पूछ लो, इस कारणवश दूसरों के भी डाउट क्लियर हो जाएं जो आपकी तरह हेजिटेट कर रहे थे. दैट वे. सो ये वाला एक थॉट भी है मेरा ये चैनल बनाने का, कि अपने एक्सपीरियंस से मेरे भी कुछ रहे थे एक्सपेक्टेशंस कि ऐसा होता है वैसा होता है. फिर जब तक आप उस इंडस्ट्री के अंदर स्टेप इन नहीं करते तब तक आपको सारे मिसकंसेप्शंस क्लियर नहीं होते हैं. You have to actually start working out there. Alright. So let me just introduce myself in a very short while. So this is Fly High with Sakshi. My complete name is Sakshi Nandwal. I am a person who is pure Indori. The ones who are Indori can relate to me, which means it's a local term for Indorians. So yes, I belong to Indore, the cleanest city of India, the very foodie city of India. And I have completed my MBA in HR and marketing. Before that, I have done my BBA in HR. Human resource. I have started my career as a technical recruiter, post which I joined Indigo as a cabin crew, and I also hold experience in training part as an aviation and grooming instructor. So I have started my YouTube channel so that I can make you all aware and solve all of your queries, doubts and misconception that you might be having before joining the aviation industry. Or else many times ऐसा होता है ना कि मुझे पता है कि my interest is in aviation, but I have heard so and so things about aviation which holds me back. मतलब कुछ ना कुछ ऐसा सुना होता है एविएशन वर्ल्ड के बारे में जिस कारणवश मुझे ऐसा लगता है कि मेरे या तो मेरे घर वाले अलाउ नहीं करेंगे, या तो मेरे खुद के जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो मैंने अपने लिए बना रखे हैं वो मुझे अलाउ नहीं करेंगे. तो किसी भी तरह का कोई भी डाउट है या तो फिर आपका इंटरव्यू रिलेटेड कुछ फीडबैक है, प्लीज डू नॉट हेजिटेट एंड शेयर इट आउट on my Instagram handle, or else you can also mention in the comment section here. So let's begin. I would like to tell you all what was my journey. In the beginning stage. So in school days, mid school से अगर देखा जाए 12th तक, तो मेरे कुछ जो परसेंटेज थे वो 70% से 80% तक थे. और मैं क्लास में बोलने में काफी ज्यादा मुझे आंसर पता होता था, बट आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं बोल पाऊं. देयर वर मेनी रीजंस बिहाइंड. मुझसे ज्यादा प्रोएक्टिव स्टूडेंट्स थे क्लास में, मुझसे ज्यादा ब्यूटीफुल लेडीज थी मेरी बैच में, एंड दे वर ब्यूटीफुल एंड कॉन्फिडेंट, which made me feel very underconfident in some or other ways. Everyone is doing absolutely well in their own life right now, but back then it was like that. I started taking initiatives somewhere around, I believe 9th, 10th और 11th, 12th कभी तो मैंने ऐसा स्टार्ट किया है. I roughly remember कि अपने डाउट्स पूछती थी, और 11th में तो मैंने बहुत ज्यादा अति कर दी थी. आई यूज्ड टू आस्क द क्वेश्चन मेरे बैचमेट्स, क्या है यार साक्षी इतना सा समझ नहीं, अरे नहीं आया तो नहीं आया, आई हैव गिवन 80,000 तो पूछूंगी, ठीक है. तो मतलब अपने पेरेंट्स के एक एक पैसे का मतलब है ना, आप अच्छे से निचोड़ लिया करो. कहने का तात्पर्य है, इससे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी. इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि आपको स्किल्स सिर्फ जॉब या बिजनेस के लिए काम आती है. स्किल्स हमेशा आपको लाइफ में काम आती है. अगर मैं आज कैमरे के सामने बोल पा रही हूँ तो ये पुरानी साक्षी अगर देखेगी तो शी वुड बी वेरी सरप्राइज्ड कि सी माई फ्यूचर वन इज स्पीकिंग so fluently, so confidently, and she's completely a different personality she could not ever imagine, है ना. So yeah, and alright. Speaking about my college days, again I stepped into the college जहाँ पे events काफी होते थे, and I am a kind of person who is very much interested in dancing and acting. हालांकि मैंने काफी सारे ऑडिशंस भी दिए थे, डांस इंडिया डांस, डांस प्लस,
बट समवेयर यू नो आई यूज टू डू सम सॉर्ट ऑफ विदाउट स्टंट डांस, या फिर कुछ ना कुछ कारणों से मेरा सिलेक्शन वहां पे इतना नहीं हो पाया कि मैं टीवी राउंड तक जा पाई. कोई बात नहीं, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन. देन आई समवेयर डिसाइडेड दैट आई विल डू IIT JEE, जिसका उस टाइम पे काफी क्रेज था, या कह सकते हैं कि ट्रेंड था, फॉर विच आई ज्वाइन सम इंस्टीट्यूट कोचिंग 11th में. सो इन 11th आई चेंज्ड माई स्कूल फ्रॉम ICSE बोर्ड टू CBSE बोर्ड. मतलब बचपन से मैंने पढ़ रखा था ICSE बोर्ड, एंड क्योंकि उधर मैंने सुना था कि JEE में IIT के लिए NCERT का काफी रिक्वायरमेंट होता है, फॉर विच आई स्विच माई बोर्ड फ्रॉम ICSE टू CBSE, मेकिंग इट कि मेरे लिए इजी हो जाएगा वो चीज. बट देन स्टोरी लाइज लाइक 3 Idiot, यू नो. हम मतलब मैं और मेरी एक फ्रेंड है, आई डोंट वांट टू नेम हर, और हम दोनों वहां पे कोइंसिडेंटली मिल गए है ना उस इंस्टीट्यूट में, एंड कोइंसिडेंटली हमारी बैच भी सेम थी, एंड उससे पहले हम फ्रेंड्स नहीं थे, हम सिर्फ बैचमेट्स थे. उसके बाद जब भी हमारा एग्जाम होता था तो हम ऐसा नीचे से लिस्ट चेक किया करते थे, ऊपर की मेहनत ही नहीं करनी है, ठीक है. फिर आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम दूसरा इंस्टीट्यूट आया, उसने उसको टेक ओवर किया, सारे वहां के ट्रेनर्स ले गए, जो भी सब चीजें हुई, काफी सब चीजें ऐसे इम्बैलेंस हो गई, तो 3 HOD बाकी थे वहां पे. लाइक ठीक है, अब 12th बोर्ड आ चुकी है, यहाँ पे वो भी नहीं है, मैं क्या कर रही हूँ, मुझे क्या करना है लाइफ में. आई वॉज जस्ट फॉलोइंग द ट्रेंड, नॉट नोइंग वॉट इज माई इंटरेस्ट. देन आई एक्सप्लोर्ड माई सेल्फ, मैंने थोड़ा जाना खुद को कि किस चीज में करना है, मैं क्या कर रही हूँ जिंदगी का. एंड ट्रस्ट मी, आप सबके लाइफ में ये फेज आएगा जहां आपको लगेगा आपको करना कुछ और है और आप कर कुछ और रहे हो, इसमें आपको सक्सेस नहीं मिल रही है. मेनी टाइम्स ऐसा होगा कि जो चीज हमें पता है ऑलरेडी कि हमें ये करना है, पर फिर भी हम आफ्टर गिविंग मल्टीपल अटेम्प्ट्स हम उसको क्लियर नहीं कर पाते, विच इवेंचुअली हमारा मॉरल डाउन करता है. ऑलराइट, बट कोई ना, बी कंसिस्टेंट आई वुड से. अगर आपको कुछ करना है तो करना ही है, बट ऑलवेज इंश्योर टू कीप अ प्लान बी रेडी, बिकॉज किसी भी चीज को, किसी भी यू नो बीट करियर और योर फ्रेंडशिप और एनी सॉर्ट ऑफ यू नो बॉन्ड, यू शुड गिव अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम पीरियड. अगर ऐसा नहीं है कि अगर मैं क्रू नहीं बन रही तो मैं 27 साल तक की उम्र तक लगी हूं कि मैं क्रू बन जाऊं. वॉर आफ्टर 27, अगर मैंने यही टाइम को यूटिलाइज करके ग्रेजुएशन भी साथ में कंप्लीट किया होता, और मैंने अगर स्टार्ट कर दिया होता एज अ ग्राउंड स्टाफ, वहां से एक्सपीरियंस गेन किया होता, अपनी स्किल्स पे काम किया होता, तो फिर देयर समथिंग कॉल्ड इंटरनल जॉब पोस्टिंग, वहां से मैं क्रू बन सकती थी. बट इसके लिए क्या जरूरी है, एक तो अवेयरनेस. ऐसा नहीं है कि यू हैव टू फॉलो योर ड्रीम वेरी ब्लाइंडली. क्रू बनना है तो मतलब क्रू ही बनना है. मेनी टाइम्स रास्ता सीधा नहीं जाता है, थोड़ा सा घूम के जाना पड़ता है ना, क्योंकि एज लिमिट है हमारे पास, उस एज लिमिट के विद इन ही हमें अपने आप को वहां पर देखना है. तो सबसे पहले आप स्टेप कौन सा क्लियर करते हो, सबसे पहले आप ये इंश्योर करते हो कि आपका गोल क्या है, किस चीज में आपका इंटरेस्ट है, किस चीज के लिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन बिल्कुल क्वालिफाइड है, आपका स्किल सेट रेडी है, सारी चीजें आप अपने आप को प्रिपेयर करते हो. ऑलराइट, फैमिली का सपोर्ट एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लाइफ में, बी इट पर्सनल और प्रोफेशनल, दोनों ही लाइफ में आपका फैमिली का सपोर्ट काफी मायने रखता है. इफ दे आर नॉट कन्विंस्ड, प्लीज ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड. और कभी भी ऐसा कोई स्टेप नहीं लेना कि अपने पेरेंट्स को काफी गर्व की जगह उनको काफी शर्म वाला फेज लगे. ऑलराइट, सो आई वाज एट माय स्टोरी. मैंने उसके बाद फिर आई डिसाइडेड कि आई विल गो अहेड एंड आई विल डू BBA, मतलब इंजीनियरिंग छोड़ के. मैंने सोचा था इंजीनियरिंग छोड़ के कुछ भी करूंगी. सो मैंने इंजीनियरिंग छोड़ दी. हालांकि मैंने JEE की एग्जाम दी, पर मैंने उसके कभी मार्क्स आई डोंट थिंक सो मैंने कभी चेक किया है, आई डोंट रिमेम्बर एज ऑफ नाउ, पर मैंने एग्जाम दी थी. KV वॉज माई सेंटर. पोस्ट विच आई डिड माई BBA, फिर MBA किया, फिर टेक्निकल रिक्रूटमेंट में गए, और उसके बाद फिर इंडिगो के लिए इंटरव्यू दिया. पोस्ट लॉकडाउन आई वेंट अलॉन्ग विद माई फादर. हम लोग का काफी सरप्राइजिंग था. फर्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ मैं अकेली जा रही थी, फिर अचानक से एक थॉट हिट हुआ मुझे. एक तो मेरा भी तत्काल में टिकट था. मैं पापा जी से पूछा मैंने कि क्योंकि क्या है ना कि फादर हमेशा अपने काम में बिजी होते हैं, एंड दे इंश्योर कि आप अच्छे से सारी चीजें आपके लिए वो कर पाए और सारी चीजें ना सारी सुख सुविधा दे पाए. सो व्हाट आई थॉट कि पापा जी को भी पूछ, पापा जी चल रहे हो क्या दिल्ली,
तो फिर 2 दिन में घूम के आएंगे। अब मैंने वो 2 के 4 दिन एक्सटेंड कर दिए थे। एज सच कोई प्रिपरेशन अलग से नाइट बिफोर पढ़ रही हूँ और ये सारी चीजें नहीं की थी। वहां जाने की भी पूरी जो स्टोरी है और वो सारी चीजें मैं आपको एक अनादर वीडियो में बताऊंगी। उसके बाद हम लोग वहां गए और 6 बजे हम दिल्ली पहुंच गए थे। मई का महीना था। 12 बजे तक वी डिडंट गेट दी होटल एंड एवरीथिंग, बट फाइनली वी गॉट इट। लोकेशन चेंज हो गई थी, कुछ तो कंफ्यूजन हुआ था, बिकॉज ऑफ विच हम दिल्ली के एक कॉर्नर पे थे, फिर हम दिल्ली के दूसरे कॉर्नर हमने चेक इन करके चेकआउट करना पड़ा, पूरा वहां पे करना पड़ा वापस, फिर इधर गए। सो इट वॉज ऑल अ हसल एट दैट पर्टिकुलर टाइम। फिर वहां गए, चेक इन किया, फटाफट से शावर लिया, मेकअप किया। ऑलरेडी वेरी मच इनटू स्ट्रेस कि मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ। इंटरव्यू स्टार्टेड अराउंड 9। सो आई वाज लाइक अब मुझे कोई ऐसा ना सोचे कि शी इज नॉट पंक्चुअल एट ऑल। But then I went over there. I relaxed myself. Sakshi, stay calm. I went through approximately 5 to 6 rounds of interview, and then I made it. I could not believe it. My father was waiting back in the hotel. उन्होंने भी कुछ खाया पिया नहीं था। I called him कि पापा जी हो गया। एंड ही वॉज सो हैप्पी। मुझे इतना बाद में अकल आई कि मुझे पापा जी को फेस टू फेस बताना चाहिए था, मुझे उनका रिएक्शन देखना था। मैंने दादी मम्मा को भी एक्साइटमेंट में तुरंत कॉल करके बता दिया, मम्मा हो गया, दादी हो गया, और ऐसे सब करके। एंड आई वाज लाइक मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था, क्योंकि मोर ओवर आई केम हियर टू स्पेंड सम टाइम विद माई फादर। पहले तो मैं सिर्फ इंटरव्यू देने जा रही थी, अब इंटरव्यू तो देना था, उसके बाद फिर मेरा टारगेट था पप्पा के साथ पूरा दिल्ली घूमने का। सो उस दिन फिर मैं 6 बजे तक मेरा इंटरव्यू, सारे डॉक्यूमेंट जितना भी उस दिन को होना था वो हुआ। एंड उसके बाद मैं पापा जी के साथ गई हूँ। कहाँ पर? मैं पापा जी के साथ गई थी सरोजनी नगर। अगर आप दिल्ली आए और सरोजनी नगर नहीं गए बीइंग अ गर्ल, तो फिर आप क्या दिल्ली है। तो हम रात को 9 बजे तक वहां गए। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे हमने और घूमा, एक्सप्लोर किया ना। वो वीडियो मेरे दूसरे चैनल पे है। सो अभी के लिए मैं बस आपको इतना ही बताना चाहूंगी। आगे की जर्नी और आपके जितने भी कंसेप्शन मिसकंसेप्शन है उसके लिए नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल ऑन यूट्यूब। और विल बी कंटिन्यूइंग फ्रॉम हियर इटसेल्फ। मैं आपको अपनी पूरी जर्नी बताऊंगी, अपने एक्सपीरियंसेस बताऊंगी, एंड बाय द टाइम आई विल नोट डाउन ऑल ऑफ योर क्वेरीज कि क्या कैसा क्या होना है, क्या नहीं होना है, क्या आपके मिसकंसेप्शन, सो विल क्लियर इट आउट ऑल टुगेदर। So stay tuned, keep following, and stay motivated. Fly high with Sakshi. Chala, bye-bye. Good night. Thanks for watching. Do not forget to subscribe and stay tuned for new video.